students, welcome back again. Today we are going to start with our second topic, that is demultiplexer. अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स में we learned all about the multiplexer circuits. Multiplexer circuits क्या थे? Those were the data selector circuits जिसमें हमारे पास many inputs थी, single output थी and we had few select lines और by choosing the select line we were able to choose which of the input will go to the output. Today we are going to start with demultiplexer circuits. Demultiplexer circuits क्या हैं? Demultiplexer circuits multiplexer का reverse operation perform करते हैं. These circuits are again the combinational circuits, लेकिन इसमें we have single input and many output. Demultiplexer circuits are also known as data distributors. क्यों कहते हैं इसको data distributor? क्योंकि इसमें मेरे पास एक single input line है और many output lines हैं depending on the number of select lines. तो जो input है वो input किस output पे मुझे मिलेगा that will be chosen with the help of the select line. So जो मेरा input data है that is going to distribute in one of the outputs, that's why it is known as data distributor circuit. Same as that of multiplexer. Multiplexer में हमने क्या किया था? 2 raised to power m is equal to n, where m was number of select line. तो यहाँ पर भी same वही केस, वैसा ही केस है, but in this case now n are again number of, जो मेरा n है that is number of outputs. This n is the output, m is the select line और जितना मेरा select lines होंगी उस पे डिपेंड होकर उसके accordingly I will have number of output lines here. So suppose कीजिए अगर मेरा m is equal to 1 है then what will be output, number of outputs 2 raised to power 1 is equal to 2. तो it will make my 1 is to 2 DMUX. Similarly, for m is equal to 2, we will have 1 is to 4 DMUX and so on. So this is the circuit which shows me m number of select lines. Depending on number of select line, we have 2 raised to power m, that is n number of output signals and 1 data input. जैसे कि मल्टीप्लेक्सर में मेरे पास डिफरेंट नंबर आईसीज अवेलेबल हैं, इसी तरह से डीमल्टीप्लेक्सर के लिए भी वी हैव नंबर ऑफ डिफरेंट आईसीज अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन विच डीमल्टीप्लेक्सर यू वांट टू यूज. फॉर एग्जांपल, if you want to use 1:4 DMUX, then you can use 74139 number IC, but in this IC the output will be inversion of the input. So जो कुछ भी मेरा इनपुट पर है, अगर मैंने इनपुट पे 1 लिया हुआ है तो मुझे आउटपुट पे 0 मिलेगा किसी भी एक आउटपुट पे, जहाँ पे मेरे पास कितनी है, नंबर ऑफ 4 आउटपुट्स आर देयर. सिमिलरली फॉर 74155 वी हैव ड्यूल 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. ड्यूल मतलब वही कि इस एक आईसी में मेरे पास 2 डीमल्टीप्लेक्सर अवेलेबल हैं. कौन से वाले? 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. देन वी हैव कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट. एक 4 आउटपुट्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आउटपुट में मेरे पास एक कॉम्बिनेशन में मुझे इन्वर्टेड इनपुट मिलेगा और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसमें मेरे पास आउटपुट वही होगा जो मैंने इनपुट पे अप्लाई किया है. सिमिलरली 74138 यू कैन यूज inverted input and single multiplexer is there and that is 1:8 demultiplexer. And for 74154 we have 1:16 demultiplexer and the output is same as that of the input. So according to the availability of the inputs, the number of pins of the IC is also different. जैसे इसमें मेरे पास 1:16 पिन डीमल्टीप्लेक्सर है, ये मेरा 24 पिन्स का होता है, और जो मेरा 74155 है वो मेरा 14 पिन्स का होता है. तो जो आपकी नंबर ऑफ पिन्स हैं वो भी आपकी चेंज हो जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट आईसीज अवेलेबल. सो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ
1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर के लिए मेरे पास नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितना होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी कहा कि आपके पास जो n है, n इज इक्वल टू 2m, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी है 4, तो सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2m, सो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन विल बी इक्वल टू 2 for 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. लेट अस सी द ट्रुथ टेबल ऑफ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. बिल्कुल वैसे ही ट्रुथ टेबल बनाएंगे जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर के केस में बनाया था. 2 सेलेक्ट लाइंस एंड द सिंगल इनपुट, और आउटपुट किस हिसाब से हमारा मिलेगा, मुझे कौन इनपुट कौन सी आउटपुट पे मुझे मिलेगी, वो हम डिसाइड करेंगे बाय टेकिंग द आउटपुट पिंस. लेट अस सी इन केस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर ऑल्सो वी हैव अनेबल टर्मिनल. तो अनेबल टर्मिनल के लिए आप क्या करेंगे, अनेबल को आप वैसे ही चाहे आप एक्टिव लो कंडीशंस में ले सकते हैं, चाहे आप एक्टिव हाई कंडीशन में ले सकते हैं. यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है, आई एम टेकिंग अनेबल एज ए एक्टिव हाई. अनेबल पिन का क्या काम है कि अगर मेरी ये पिन एक्टिव होगी तभी मेरा आईसी काम करेगा, अदरवाइज आपका आईसी दैट विल बी इन डिसेबल कंडीशन. सो अगेन आई हैव 2 number of select lines, so I have named it S1 and S0, and the outputs are 4, and these outputs are Y0, Y1, Y2 and Y3. अब जब मेरा E0 है, यानी जब मेरा अनेबल 0 है, तो whatever is the select line, XX means यहाँ पे आप चाहे 0 लगा लो, चाहे 0 1, कोई भी कॉम्बिनेशन आप S1 और S0 का लगा लीजिए, आपको आउटपुट 0 ही मिलेगा, क्योंकि इस समय पे मेरा जो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर आईसी है वो मेरा इनएक्टिव है, इट इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन. तो जैसे ही मैंने ई को हाई किया, ई व्हेन ई इज 1 फॉर ऑल द 4 केसेस क्यों है, बिकॉज वी हैव 2 सेलेक्ट लाइन, तो जो कॉम्बिनेशन होगी दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1 1 1. अब यहाँ पे मेरा 1 का क्या मतलब है, 1 एक्चुअली इज अ इनपुट जिसको मैं डी इन ले लेती हूँ. अगर मेरी डी इन, this is my input, D in can be 1 or 0, that depends. तो अभी इस केस में मैंने D in 1 लिया है, तो जब मेरा सेलेक्ट लाइन 0 होगा, जो मेरी इनपुट है, जो मेरी फर्स्ट जो मैंने इनपुट लिया है, लेट अस सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 1:4 मल्टीप्लेक्सर वंस अगेन. इस केस में क्या होगा, हमारे पास एक इनपुट है और 4 आउटपुट्स हैं. लेट अस सपोज दिस एंड 2 सेलेक्ट लाइंस आर देयर, जिसको मैंने यहाँ पे S1 और S0 बोला है. दिस इज Y0, Y1, Y2 एंड Y3. दिस इज D in. अब यहाँ पे D in को मैं 1 ले रही हूँ, तो जब S1 S0 0 होगा, तो जो ये 1 है ये मेरा कहाँ जाएगा, Y0 पे जाएगा. और जब मेरा ये 0 1 हो जाएगा, D in जो कि मैंने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, Y1 पे चला जाएगा, फिर Y2 पे जाएगा, नेक्स्ट केस के लिए Y3 पे चला जाएगा. तो जहां जहां मेरा इनपुट आउटपुट पे पहुंचना है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट आई हैव पुट द वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना इनपुट को 1 ले रही हूँ. सो यू कैन सी कि जब 0 है तो Y0 1 है, बाकी सारे 0 हो गए. जब 0 1 है तो Y1 1 है, बाकी सारे 0 हो गए. जब 1 0 है तो Y2 1 है, बाकी सब 0 हो गए. एंड 4 1 1, देन output Y3 is 1. So corresponding to this you can write the expression for Y0, Y1, Y2 and Y3. So what will be the expressions? These are the expressions. Y0 is equal to S1, S0 both bar complement. और अगर मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा S1 0, S0 0, D in. क्योंकि यहाँ पे अभी हमने 1 लिया है, तो यहाँ पे मैं D in को 1 लेती हूँ, तो इट कम्स आउट टू बी S1 बार S0 बार इटसेल्फ. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने क्या किया, Y0 को 1 ही लिया है, आउटपुट इनपुट को 1 लिया है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आउटपुट यू आर गेटिंग 1. अदरवाइज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन इज Y0 इज इक्वल टू S1 बार S0 बार D in. सिमिलरली Y1 विल बी इक्वल टू, that will be equal to, see corresponding to this, S1 bar S0, S1 bar S0 and D in. अगेन जनरल केस हम ले रहे हैं, जब मेरा D in
अगर 1 की जगह मैं d इनपुट कर दूं तो इट विल कम आउट टू बी, नेक्स्ट केस y2 विल बी S1 S0 बार d in and y3 will be equal to S1 S0 एंड डी इन। तो इस पूरे के पूरे चारों एक्सप्रेशन को अगेन यू कैन रियलाइज विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। जैसे कि हमने मल्टीप्लेक्सर का सर्किट बनाया था, सेम वैसे ही हम सर्किट रियलाइजेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, लेट अस सी। दिस इज द सर्किट फॉर 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग गेट्स। तो इसको आप नैंड से भी बना सकते हैं। हेयर आई एम यूजिंग एंड गेट्स। जैसे आपने देखा y0 मेरे पास क्या आया था, S1 बार S0 बार D in, y1 इज इक्वल टू S1 बार S0 D in, y2 इज S1 y0, y2 is S1 S0 bar D in and y3 is S1 S0 D in। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये S1 है, मैंने एक इन्वर्टर सर्किट यूज करके S1 बार ले लिया। सिमिलरली फॉर S0 एंड S0 बार एंड दिस D in is common to all the gates। तो जो मेरा पिछला वाला अभी मैंने केस लिया उसके लिए मैंने क्या लिया था, D in को 1 लिया था। Otherwise D in can be 0 also. So these generalized expressions we have implemented using logic gates. You can use NAND gate also. तो NAND gate के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल डबल बार करके सेम सर्किट you will get using the NAND gate. You can do practice at your own. और in this circuit we have used 4 AND gates क्योंकि 4 different expressions हैं, 4 different outputs I am getting. तो corresponding to that you can have connection of S0, S1 and D input and you will get all the outputs individually. This is the block diagram of 1:4 demultiplexer. You can have another block diagram also like 1:2 मल्टीप्लेक्सर के केस में हमारे पास क्या है, सिंगल सेलेक्ट लाइन हो जाएगा और एक अनेबल टर्मिनल। इट्स अंडरस्टूड कि हम अनेबल ले रहे हैं क्योंकि अभी मैंने इस केस में एक्टिव हाई लिया है। तो यहाँ पे ये अनेबल प्लस VCC से आप जोड़ेंगे तभी आपका IC जो है वो एक्टिव करेगा। और इफ यू विल ग्राउंड इट, जब आप इसको ग्राउंड कर देंगे तो ग्राउंड के केस में हमारा जो IC है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। Similarly, you have 1:8 demultiplexer and 1:16 demultiplexer। उस केस में मेरे पास क्या हो जाएंगी, 4 सेलेक्ट लाइन्स हो जाएंगी, सिंगल इनपुट है एंड 0 से लेके 15 तक आई विल हैव द नंबर ऑफ आउटपुट्स for 1:16 demultiplexer. So this is the block diagram representations of the different demultiplexers available. जो मेरा मैक्सिमम IC अवेलेबल है डीमल्टीप्लेक्सर के लिए भी, दैट इज 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर IC, same as that of the multiplexer. Multiplexer में भी highest IC we have 1:16 multiplexer, 16:1 multiplexer, and here in this case of demultiplexer we have highest IC available is 1:16 demultiplexer. क्योंकि हाईएस्ट मेरे पास 1:16 ही अवेलेबल है, तो अगेन टू गेट द मोर लार्जर demultiplexer we use demultiplexer trees. We will take the example of 1:8 demultiplexer using 1:4 demultiplexer कि मुझे बनाना तो 1:8 demultiplexer है लेकिन मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या है, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर की अवेलेबिलिटी है। सेम वही बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर में किया था। आप क्या करेंगे, 2 डीमल्टीप्लेक्सर्स यूज कर लेंगे। कौन से वाले, 1:4 वाले 2 डीमल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे एंड यूजिंग दैट वी विल इम्प्लीमेंट 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1:4 मल्टीप्लेक्सर में क्या है, वी हैव 2 सेलेक्ट लाइन, 1 अनेबल, और 1:8 में क्या होता है, 3 सेलेक्ट लाइन होती है और 1 अनेबल होता है। तो अब अवेलेबिलिटी मेरे पास क्या है, 2 सेलेक्ट लाइन्स की है और मुझे इसको बनाना क्या है, 3 बनाना है। 3 सेलेक्ट लाइन में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 1:4 मल्टीप्लेक्सर की डीमल्टीप्लेक्सर की जो मेरी 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं उसको मैं कॉमनली यूज कर लूंगी, S1 एंड S0। और जो मेरी थर्ड लाइन है या तो उसको आप अनेबल टर्मिनल से यूज कर सकते हैं, अनेबल को आप थर्ड सेलेक्ट लाइन की तरह यूज करेंगे, या फिर दूसरा मेथड क्या है, यू कैन यूज 1:2 मर्क्स
एंड इस 1:2 मक्स की जो दो आउटपुट्स हैं दे विल बी गिवन टू अनदर 1:4 मल्टीप्लेक्सर. वी विल सी. आपने क्या किया, एक 1:2 मल्टीप्लेक्सर ले लिया और उसकी आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कहां पे, इन दोनों की कॉमन कर दी सेलेक्ट लाइंस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग कि आपने क्या किया, या तो अनेबल टर्मिनल जैसे मल्टीप्लेक्सर में यूज किया था, अनेबल टर्मिनल को थर्ड सेलेक्ट लाइन की तरह यूज करेंगे, या फिर एक 1:2 डीमक्स को यूज करेंगे और उसकी जो आउटपुट है दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अनदर 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. एंड इनकी जो चार आउटपुट्स हैं वी विल टेक फ्रॉम हेयर above 4 or these below. These will give me the 8 outputs which are required for 1:8 demultiplexer. तो ये दोनों एग्जाम्पल हम वन बाय वन देखते हैं कि कैसे we can realize 1:8 demultiplexer using 1:4 demultiplexer. This is the logic circuit for 1:8 demultiplexer using two 1:4 demultiplexers. Let us understand how we have made this. In IC1 we have one number of D input and in IC2 also we have one number of input, that is D in. We have taken enable terminal for both and we have connected because we are taking it as active high. तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें मैं enable से अपना थर्ड सेलेक्ट लाइन का काम करवा रही हूँ. This is the third select line. S1 and S0 these are the common for बोथ. दोनों ICs की सेलेक्ट लाइंस को मैंने कॉमन कर लिया है एंड आई हैव टेकन इट आउट. फर्स्ट 4 आउटपुट्स आई विल टेक फ्रॉम IC1 एंड अनदर 4 आउटपुट्स वी विल ऑब्टेन फ्रॉम IC2. तो इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं. क्या है, S2, S1, S0 एंड द आउटपुट्स आर फ्रॉम Y0, Y1 to Y7. So we will understand one or two cases when S3, S2, S1 and S0 are 0, 0. It means the first input जो मेरी input है that will be connected to Y0. देखते हैं, जब मेरा S0 0 है, फर्स्ट के अनेबल टर्मिनल पे 1 गया और यहाँ पे क्या गया 0. तो जो मेरा IC2 है अभी इस केस में ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, इसने काम नहीं कर रहा है, दिस इज डिसेबल्ड. तो जो आउटपुट फर्स्ट है D0, D in will be connected to Y0 and I will get Y0 is equal to D in. So जो मेरी Y0 है that will be equal to D in and the rest of the outputs will be 0, 0. Similarly for 0, 0, 1. Still S0 is 0. तो जब तक S0 0 रहेगा तब तक मेरा जो सेकेंड वाला IC है वो काम नहीं करेगा, दैट इज डिसेबल्ड. और हमने अभी केस कौन सा ले रहे हैं, 0, 0, 1. यानी 0, 0, 1 मीन्स जो मेरी D इनपुट है दैट विल बी कनेक्टेड टू Y1. सो Y0 विल बी इक्वल टू 0 एंड Y1 इक्वल टू D एंड रेस्ट विल बी 0. अब similarly you can study for 0, 1, 0 and 0, 1, 1. We will consider the fourth case when S2 is 1 and rest of the 2 सेलेक्ट लाइन्स आर 0. तो अभी क्या हुआ, we have S2 is 1, S2 has become 1. तो जैसे ही 1 हुआ, this enable will be equal to 0 means now IC1 is disabled and IC2 becomes able means it is active. And S0, S1 and S0 both are 0. When S0 and S1 both are 0, this D in is going to connect it with the first output and here first output is Y4. तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे Y4 1 हो जाएगा, Y4 is 1 and rest Y0, Y1, Y2, Y3 are 0 and remaining also 0, Y5, Y6, Y7. These are the case for the 4 आउटपुट्स जिसमें से मेरे पास सिर्फ Y4 1 है, बाकी सारा 0 हो गया. सिमिलरली अनदर केसेस यू कैन डिस्कस एंड for 1, 1, 1 we will have the case when again the last this D in will be connected to Y7 and you will have 0, 0, 0, 0,
0 0 0 1 means y7 is 1 and rest of the outputs are 0. So this is how we can obtain 1:8 demultiplexer using 1:4 मल्टीप्लेक्सर्स, जिसको मैंने एज अ ट्री यूज किया है. 2 डीमल्टीप्लेक्सर्स का यूज करके वी आर गेटिंग सिंगल 1:8 मल्टीप्लेक्सर. So this is the circuit description about the 1:8 demultiplexer using 1:4 demultiplexer. Let us see the truth table of this 1:8 demultiplexer. S3, S2, S1 and S0 they will go from 0 0 0 to 1 1 1, क्योंकि हमारे पास कितने केस होंगे 0 से लेके 7 तक 8 केस हो जाएंगे. S0 0 0 to 1 1 1. जब तक S0 0 है तब तक मेरा IC1 काम करेगा, और जैसे ही मेरा S2 1 हो गया then IC2 will be enabled and the other IC will be disabled. It means one IC is working at one time and corresponding output we will get high. For example, for the case of S2 1, S1 1 and S0 is also 1, our IC2 is enabled and IC1 is disabled, and the fourth input will reach at the fourth output, and that was Y7. So Y7 will be high. So here is the truth table of the 1:8 demultiplexer which we got using two 1:4 demultiplexer circuits. The other method which I told you that you can also use 1:2 demultiplexer and two 1:4 demultiplexer to get the same circuit combination. This is the circuit. Let us understand this circuit also. What we did, we have taken 1:2 demultiplexer which has one select line, जो हमने third select line का काम करेंगी, और 1:4 demultiplexer, this is my IC1 and this is IC2. तो यहाँ पे टोटल हम 3 ICs यूज कर रहे हैं, जिसमें से मेरा एक IC मेरा 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर का है, एक हम 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं, अनदर ऑल्सो ऑफ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. तो दो यहाँ पर 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं और एक मैंने 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर यूज किया है. अगेन वी आर टेकिंग इनपुट एज डी इनपुट. तो अभी वही सेम केस इसके लिए भी हमारा इंप्लीमेंट होगा. S2, S1, S0 0 0 0 से लेके इट विल वेरी अप टू 1 1 1 एंड आउटपुट विल बी फ्रॉम Y0 टू Y7. तो जब मेरा S2 0 है तो क्या होगा, जो मेरी D इनपुट है वो कहाँ जाएगी, फर्स्ट वाले आउटपुट पे जाएगी. तो जब तक S0 0 है, मेरा जो इनपुट है D in है दैट इज गोइंग टू फर्स्ट डीमल्टीप्लेक्सर, और जैसे ही S2 हमारा 1 हुआ देन दिस इनपुट विल बी कनेक्टेड टू द सेकेंड आउटपुट एंड the input will reach, that is D in will reach at second demultiplexer. And here again for the cases we will consider 0 0 to 1 1 1. 0 0 के लिए what will happen, because when S0 is 0, S1 and S0, S2 is 0, S1 and S0 are also 0. In this case D input is reaching at this terminal and you are getting here D in. And again corresponding select lines S1 and S0 are also 0 0, so this D in will reach at D1. तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, D in मिल जाएगा. और जब मेरा केस, हम ये लास्ट वाला केस कंसीडर कर सकते हैं, बीच वाले यू कैन इम्प्लाई एट योर ऑन. व्हेन S2 is 1 means when S2 is 1 D input is reaching over here and both S1 and S0 are also 1 1, these two are also 1 1. सो फोर्थ इनपुट जो मेरा इनपुट है वो कहाँ पहुंचेगी, फोर्थ वाले आउटपुट पे. तो मेरा Y7 1 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग सिंगल 1:2 मल्टीप्लेक्सर एंड 2 1:4
डीमल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, अनेबल टर्मिनल का यूज नहीं किया है एज अ थर्ड सेलेक्ट लाइन, वी हैव यूज्ड अनदर 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर for the select line, or in this case my both 1:4 demultiplexer will be in active condition and the control will be through the 1:2 demultiplexer. Similarly you can get 1:16 demultiplexer also using 1:8 by using both the methods. This method I am showing you with the 1:2 demultiplexer, and 3 select lines are taken from 1:8 multiplexer, and the fourth select line is taken from the 1:2 demultiplexer, and the operation will be same as that earlier we have discussed, just in case of 1:8 demultiplexer using 1:4 demultiplexers. Let us know about some of the applications of demultiplexer. जो हमारे demultiplexer circuits हैं, they can be used for serial to पैरेलल कन्वर्जन सेम एज दैट ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। जैसे मल्टीप्लेक्सर्स को हमने पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन के लिए यूज किया था, बिकॉज डीमल्टीप्लेक्सर आज 1:many। तो जो मेरा सीरियल डाटा है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पैरेलल वन। We can again implement different Boolean functions using demultiplexers. You can design any combinational circuits by use of these demultiplexer, and we can use synchronous data transmission systems. These demultiplexer circuits are again can be used for the data communication, and we can select different input output devices for the डेटा ट्रांसफर। तो हम डीमल्टीप्लेक्सर का यूज उस केस में भी कर सकते हैं जहां पे मुझे डाटा ट्रांसफर के लिए एट द आउट फ्रॉम द आउटपुट्स वी हैव टू चूज एनी वन ऑफ द डिवाइस टू ट्रांसफर द डाटा। So let us see the example of implementation of the Boolean function using demultiplexer. That is quite easy. Again here you can use multiple Boolean expressions to solve the demultiplexer using the same IC. तो एक ही IC में आप different functions को implement कर सकते हैं। अगर यही function मैं आपको बोलती कि you solve it using K-map, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको 2 different K-maps बनाने पड़ते, और उन दोनों different K-maps का use आप किस में करते, 2 different K-maps बनाते, फिर उसको सॉल्व करते, फिर आप बुलियन एक्सप्रेशंस यूज करके जो एक्सप्रेशन आता उसको आप इंप्लीमेंट करते यूजिंग लॉजिक गेट्स। बट हेयर वी कैन यूज अ सिंगल डीमल्टीप्लेक्सर आईसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शंस F1 एंड F2। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर डायरेक्टली यू कैन यूज, और यू कैन यूज 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर same as that of we have done in the previous example। तो हम इसमें we are using just 1:16 demultiplexer data input। जो वेरिएबल्स आपको गिवन हैं उन वेरिएबल्स को आप क्या करेंगे, अपने सर्किट आउटपुट पे लगाएंगे। जैसे 1 गिवन है, 2 गिवन है, 5 I have given, then after that 7, then after 9। हम क्या करने जा रहे हैं, इन सब में से कोई भी एक इनपुट, जो मेरी इनपुट जो है किसी भी एक आउटपुट पे पहुंचेगी, तो मेरा जो आउटपुट है दैट शुड बी हाई। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन सारे सर्किट्स को उठाऊंगी, इन सारी बुलियन एक्सप्रेशंस की नंबर्स को उठाऊंगी और एक और गेट पे कनेक्ट कर दूंगी। तो ये जो और गेट क्या काम करेगा, एनी वन ऑफ द इनपुट विल बी हाई, द आउटपुट विल बी हाई, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट यू विल गेट हाई और लो। जो भी आप इनपुट अपना ले रहे हैं हाई या लो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट हाई मिल जाएगा। इफ एनी वन ऑफ इज हाई इट शुड बी हाई, इफ ऑल आर हाई इट शुड बी हाई। दिस इज द फंक्शन 1। हाउ सिंपल इट इज। इस पूरे के पूरी जो मुझे वेरिएबल में न्यूमरल नंबर्स दिए हैं, जो मुझे एक्सप्रेशन दिया है, मैंने उन सबको लिया एंड आई हैव कनेक्टेड विद द ऑर गेट। सिमिलरली फॉर द अदर एक्सप्रेशन ऑल्सो यू कैन यूज अनदर IC y0 के लिए, 1 के लिए, then you can use 3, then you can use 5। जो भी नंबर दिए हैं उन सबको आप उठाएंगे और सिंपल एक और गेट पे कनेक्ट कर देंगे, 7, 11 एंड 13। तो आप इसको थोड़ा और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। You can use OR gate again. You can draw it in a good manner as you want. So all these again variables are connected to the OR gate and you will get the second expression F2. So whatever the expressions are given, you will connect them with the OR gate. इनमें से कोई भी एक हाई होगा तो आपको जो आउटपुट है that will be high.
So this is the method how simply we can get any Boolean expression, we can implement any Boolean expression using demultiplexer circuit. Same काम आप multiplexer tree से भी कर सकते हैं. Let us see the another example. Implement full subtractor using 1:8 demultiplexer. जैसे last lecture में हमने full adder circuit किया था using multiplexer. बिल्कुल सेम वही concept we will use. We will first make the truth table for the full subtractor circuit. उसको हम क्या करेंगे, SOAP form में लिखेंगे expression को and we will implement using single 1:8 demultiplexer. This is इस ट्रुथ टेबल से यू आर ऑलरेडी फैमिलियर, क्योंकि अपने लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर्स में आप कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कैसे करते हैं वो सीख चुके हैं. सेम वही कंसेप्ट यूज़ करके वी हैव डिज़ाइन दिस ट्रुथ टेबल. आई विल गिव यू जस्ट द रिव्यू दैट इफ़ ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, जब भी मुझे फुल सबट्रैक्टर डिज़ाइन करना होता है तो मेरे पास 3 वेरिएबल हमें चाहिए होते हैं. तो आप क्या करेंगे, we have A, B and C. These are nothing but the select lines which you are taking. So A, B and C 3 combinations are there, but you will make the difference operation on these 3 functions given and you will get the output. 2 different outputs you will get. One will be known as difference, another will be known as final borrow जो आप लेते हैं. तो जब 0 में से 0 माइनस करेंगे the difference will be 0. Again द 0 में से 0 माइनस करेंगे, डिफरेंस विल बी 0. कोई बोरो नहीं लिया है तो बोरो विल बी 0. इन दिस केस 0 माइनस 0 विल बी 0. बट इफ आई विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0 देन व्हाट इज देयर, उसको बोरो लेना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, बोरो विल बी 1 एंड डिफरेंस विल बी 1. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब जो आपको अपना प्रीवियस सेमेस्टर्स का सारा बाइनरी ऑपरेशन सब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब ध्यान में है, तो उसी पे बेस्ड हमने इस ट्रुथ टेबल को कंप्लीट किया है. देन फॉर 0 1 0 डिफरेंस विल बी 1, बोरो विल बी 1 एंड यू विल कंप्लीट दिस टेबल एंड राइट द एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंस एंड बोरो. तो डिफरेंस के लिए मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो डिफरेंस 3 वेरिएबल्स हैं, 3 सेलेक्ट लाइंस हैं, तो ऑपरेशन विल बी जो 1 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई विल हैव सिग्मा m 1 2 4 and 7. एंड विद रिस्पेक्ट टू बोरो वी विल हैव जो 1 है उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे 1 2 3 and 7. तो मेरे पास एक डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन आ गया और मेरा दूसरा क्या आ गया, बोरो के लिए आ गया. अब इन दोनों ऑपरेशंस को वी विल इम्प्लीमेंट यूजिंग 1:8 demultiplexer. सी हाउ these are the values for difference and borrow and I have used 1:8 simple demultiplexer. 3 select lines are there which I have taken from as A, B and C. So again what will you do, आप क्या करेंगे, जो inputs outputs पे given हैं उन सबको उठाएंगे. 1 2 4 and 7 इन सबको आप उठाएंगे और कहाँ लगाएंगे, एक और गेट पे लगा देंगे एंड दिस और गेट आउटपुट विल गिव यू डिफरेंस D and remaining the another expression is 1 2 3 7. So you will take 1 2 3 and 7. You will take another OR gate and it will give you the final borrow. So this is how simply you can implement any combinational circuit using demultiplexer circuits. जैसे कि आपने मल्टीप्लेक्सर के केस में एग्जाम्पल किए थे, सेम इम्प्लीमेंटेशन वी हैव डन हेयर विद द demultiplexer circuits. There is one question again for you. Simplify these Boolean expressions using 1:8 demultiplexer or you can use demultiplexer tree also. आप 1:4 का यूज करके करें, 1:2 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके ट्री बना सकते हैं. द चॉइस इज योर्स. सो विद दिस